Hello student, good morning. Now in this video we have to discuss about exercise 7.2 using sectional formula. In previous video we discussed about the basic concept of sectional formula, and related to this sectional formula we learned some notes. Okay, so you have to remember this all notice. Now one more note is present here, note number 6. You have to remember it. Okay, so let's understand note number 6. What is in note number 6? Okay. Suppose we have parallelogram. Suppose we have rhombus. We have square or rectangle. Okay. I list here 4 quadrilateral: parallelogram, rhombus, square and rectangle. Any of one from these 4, if we have any of one from these 4, then suppose I take parallelogram here. Okay, I just explain here is a parallelogram. It is a parallelogram, and the vertices of parallelogram are A, B, C and D. Suppose the coordinates of A is x1, y1, and coordinate of B is x2, y2, and coordinate of C is x3, y3, and coordinate of D is x4, y4. These 4 are the vertices of this parallelogram. It may be possible that except parallelogram, it is square, rhombus or rectangle is available in the question. Okay, so we learned one property about these 4. One property is common for these all 4. Diagonals are bisect each other. ओके आप लोगों ने ऐसा लिखा था कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट हो गए, बट स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, स्क्वायर एंड रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट तो हो गए, बट दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री. वो हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? Bisect means divide the line segment into 2 equal parts, means midpoint, intersection with midpoint. Suppose the diagonal AC is here and diagonal BD is here. AC and BD intersect each other in point O. Then O is midpoint of AC. Also O is midpoint of BD. We know this very well. Clear? So by using this concept we can write that what is the midpoint of AC? O. What is the midpoint of BD? O. The answer is O. The answer is same for both diagonals. So we can write one property here, that midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD. We can conclude this. Okay. Now अब आप लोगों को पता है कि लाइन सेगमेंट A है x1, y1, y1 एंड B है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. सपोज P इज मिड पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हमने नोट नंबर 1 में पढ़ा. अगर आप लोगों को नोट नंबर 1 याद है तो ये नोट नंबर ऐसी थी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे होता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है? 2 रेशियो 1:1 आ जाता है. तो यहाँ पर क्या आता था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. इट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट. अंडरस्टैंड? नाउ वी कैन अप्लाई द सेम फॉर लेफ्ट हैंड साइड, also right hand side. So let's apply the midpoint formula for this left side. Okay, so divide में क्या आएगा? 2. वो तो कंफर्म है. नाउ
किसके मिड पॉइंट राइट करना है? ए सी के। तो हम ए एंड सी, वी हैव टू कंसीडर ए एंड सी। ए एंड सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x1 एंड x3। तो यहां पर क्या आएगा? x1 प्लस x3। क्लियर? सो व्हाट इज इन y कोऑर्डिनेट? y1 प्लस y3। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ BD, you can write yourself, try to write this coordinates BD. So we have to consider B and D points. What is the B? x2 y2 and D x4 y4. Now addition of x coordinate. So x2 and x4. Here is x2 plus x4 by 2 and here is y2 plus y4 by 2. Now the question is that sir how we can use this? इसका यूज कहाँ पर है? आपने पढ़ा तो दिया, but what is the use of this knot? Okay, listen. In this parallelogram, rhombus, square and rectangle, there are 4 vertex are present. Among these 4, A, B, C and D. Okay, 3 vertex are given. A, B और C 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, बट चौथा कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम ये नोट्स यूज करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ए, डी और सी दिया है, बी फाइंड करना है, मतलब 4 में से 3 दिया है, 1 फाइंड करना है, तो हम ये नोट यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ अब थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई लाइन सेगमेंट है और उसका मैं नेम दे देता हूं ए बी। तो यहाँ पर क्या आता है? उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट आता है x2, y2, यहाँ पर पॉइंट आता है P, उसे सेक्शन पॉइंट बोलते हैं। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y और रेशियो क्या होता है? m एंड n। देन सेक्शन फॉर्मूला xy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? एंड कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, आप लोग मिस्टेक कहाँ करते हो? यहाँ पर गलती से आप लोग माइनस लिख देते हो, ताकि आप लोगों के माइंड में फॉर्मूला अच्छी तरह से सेट नहीं होती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। और भी एक गलती करते हो आप लोग, क्या करते हो कि mx1 लिख देते हो, यहाँ पर आप लोग 1 लिख देते हो और nx2 लिख देते हो, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसीलिए मैंने mx2 प्लस nx1 थोड़ा बड़ा लिखा, यहाँ पर my2 भी बड़ा लिखा और ny1 भी बड़ा, ये याद रखनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सेक्शन फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर उसे रहने देता हूँ। Find the coordinate of the point which divide the join of this point and this point in the ratio of 2:3. We have 2 points, this is and this is. If you join this point, then you have 1 line segment. तो मैंने उसको नेम दे दिया A and B, तो A के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -1 and 7। ये यहाँ पर आएगा -1 and 7। क्लियर? और B के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4 and -3। नाउ रेशियो 2:3, m की वैल्यू क्या आएगी? 2 और n की वैल्यू क्या आएगी? 3। अब आपको फाइंड क्या करना है? ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो सेक्शनल फॉर्मूला यूज करेंगे, बट पहले आप लोगों को जो डेटा दिया है वो ऐसी पैटर्न में राइट कर देना है कि P के कोऑर्डिनेट xy है, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और रेशियो क्या होता है? m अपॉन n। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, A के कोऑर्डिनेट दिया है -1 7 एंड B के कोऑर्डिनेट दिया है 4 एंड -3 एंड रेशियो इज ऑल्सो गिवन 2/3। अभी तक मैंने जो भी डेटा दिया है उसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सेट हो। आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेक्शनल फॉर्मूला ही यूज करना है? बिकॉज रेशियो गिवन है तो सेक्शनल फॉर्मूला ही आएगी। ठीक है,
Now according to the section formula, we have the coordinate of xy. I rewrite the section formula here: mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. Now अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। पहले हम m एंड n की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छी तरह से ध्यान देना, इसके हिसाब से अब ये वैल्यूज, ये इसमें से ये सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो पहले m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। यहाँ पर आता है m, यहाँ पर n, m प्लस n, m 2 है n 3 है, क्लियर, ध्यान देना। सो 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 3। हम ऐसे पैटर्न में राइट करेंगे, कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो राइट किया, कॉपी दिस इन y कोऑर्डिनेट, सेम टू सेम कॉपी कर दो। 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 3 इंटू ब्रैकेट अपॉन 2 प्लस 3 एंड ब्रैकेट ओवर, सेम टू सेम कॉपी राइट किया। आप लोगों ने क्या किया, अभी सिर्फ m एंड n की वैल्यू इसमें पुट की है। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, x2 x1, x2 x1, what is the value of x2 and x1, 4 and minus 1, so here is 4, here is minus 1, clear। Now y2 y1 minus 3 and 7, minus 3 and here is 7, okay। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वैल्यू पुट करने में अगर जरा से भी इधर उधर हो गया तो पूरा सम गलत हो सकता है। नाउ अब हम सिंप्लीफिकेशन देंगे, 4 to the 8 प्लस माइनस 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 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 3 the minus 6 प्लस 3 7 the 21 एंड डिवाइडेड बाय 5, 2 प्लस 3 क्या होगा, 5, क्लियर। नाउ आई राइट इट हियर। सो वी हैव 8 minus 3 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड माइनस 6 प्लस 21, सब्ट्रैक्शन होगा 15 upon 5, 15 upon 5। So after simplifying 5 5 cut, we have only 1 and 5 3 the 15, so 1 and 3। So we got the sectional point xy is equal to this। Thus we can write, thus P, this point P means 1 and 3 divides line segment AB in the ratio of 2:3, ओके। सो ऐसे आप लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।